آغاز اس خبر کے ساتھ کہ اگر غداری ہو رہی تھی تو پھر جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا؟ عمران خان کی بکل میں چور ہے جو ان کے گھر کو خرچ چلاتے ہیں۔ سعد رفیق نے سابق وزیر اعظم کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کہتے ہیں سابق حکومت نے پنجاب کو فراگوگی کے ذریعے چلایا۔ عمران خان کس کے ایجنڈے پر چل رہے؟ اپنے محسنوں کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ جہانگیر ترین اور علیم خان کو استعمال کر کے چھوڑ دیا۔ لیگی رہنما ایاز صادق نے سوال اٹھایا، عمران خان کے پاس توشہ خانہ کے تحائف خریدنے کے پیسے کہاں سے آئے؟ جو تحائف بیچے اس کے رسیدیں کہاں ہیں؟ عمران خان کے خلاف ریفرنس پر اسپیکر نے فیصلہ دینا ہے۔ پنجاب کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ تم پنجاب کو کس کے ذریعے چلا رہے تھے؟ ملک کے سب سے بڑے صوبے کو آ گئی ہیں محترمہ، وہ ہے ہی نہیں ملک میں موجود۔ اور کون سا پاکستان کا چور ہے جو تمہاری بکل میں موجود نہیں ہے، جو تمہارے خرچے چلاتے ہیں؟ اور احسان فراموش اتنا، جس کا کھاتا ہے اسی کو کاٹتا ہے۔ اسی نے جہانگیر ترین صاحب کو کاٹا، انہوں نے علیم خان صاحب کو کاٹا، اور آج کل یہ انہیں کاٹتا جو اس کی انگلی پکڑ کے چلاتے تھے۔ کوئی پولیٹیکل سٹرگل نہیں ہے آپ نے کلٹ ڈیولپ کیا ہے اور اس کے پیچھے سرمایہ ہے، اس کے پیچھے غیر ملکی سرمایہ کاری ہے۔ اسی لیے تو فورن فنڈنگ والا جو کیس ہے آپ چلنے نہیں دیتے، دوسروں کو تانے دیتے تھے جی اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے ہیں۔ خود اسٹے آرڈر کتنے لیے ہیں کبھی بتایا؟ ہم سب کو کہتے تھے ضمانتوں پر ہے، اب خود ضمانتوں پر ہے۔ ایک ان کے خلاف ریفرنس اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس موو ہو چکا ہے، اور ریفرنس توشہ خانہ سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ سستی انہوں نے وہاں سے توشہ خانہ سے چیزیں لی، نمبر 1 پیسہ کہاں سے آیا، پھر اس کے بعد جو بیچا اس کی رسیدیں کدھر ہیں؟ ریفرنس جو موو ہوا ہے وہ انشاءاللہ 30 دن میں اسپیکر صاحب نے اس کا فیصلہ دینا ہے۔ تو اس کے بچے، تینوں بچے یہاں نہیں ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، جس کو شاید یہ نہیں مانتے، وہ بھی پاکستان نہیں ہے، اور دوسرے کے بچوں کی بات کرتے ہیں کہ یہ وہ پاکستان میں نہیں رہتے۔ اپنے بچے تو لے آؤ پہلے۔ لوٹ کر کھا گئے پاکستان، بشرا گوگی اور کپتان۔ نون لیگ کا بشرا بی بی کی مبینہ آڈیو پر سخت رد عمل، حکومت کا فرح گوگی کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کا اعلان۔ ملک احمد نے کہا فرح خان نے 60 کروڑ کا 10 ایکڑ کا انڈسٹریل پلاٹ 8 کروڑ میں لیا۔ عمران خان اپنی اہلیہ کی سہیلی کو واپس کیوں نہیں لاتے؟ ہاؤسنگ سوسائٹی کو غیر قانونی الاٹمنٹ کے لیے ہیرے کی انگوٹھیوں کی ڈیمانڈ کی جاتی رہی۔ عمران خان نے گھڑی بیچ کر دوست ملک کو ناراض کیا، عطا تارڑ بھی خوب گرجے برسے۔ یہ واحد آدمی ہے جو کہتا ہے کہ میں ہوں امر بالمعروف، اور باقی جو ہیں وہ سارے وہ نہی المنکر کی اس کی کیٹیگری میں کھڑے ہوں۔ یہ جو ٹیپ کل سے وائرل ہے، آپ نے سنی ہے سب، وہ جن کے متعلق دعویٰ تھا کہ وہ خاتون خانہ ہیں، ان کی بات نہ کی جائے۔ ابھی تو وہ گھریلو خاتون ہیں، اگر وہ پولیٹیکل ہوتی تو بھی تو صرف سازش کا بیانیہ داغا ہے، اگر وہ پولیٹیکل ہوتی تو مجھے خدشہ ہے کہ وہ ایٹم بم چلاتی۔ آپ نے بیرونی سازش کا نام دے کر اصل میں ایک اندرونی سازش کی، جھوٹ کو اپنے سچ ثابت کرنے کے لیے آپ نے پاکستان کے اربوں روپے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ لگا دیے۔ لوٹ کے کھا گئے پاکستان، بشرا گوگی اور کپتان۔ یہ عمران خان نا کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چور۔ اس کی اہلیہ صاحبہ بنی گالا میں بیٹھ کے ویلنگ ڈیلنگ کرتی تھیں، تھوک کے حساب سے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو اپروول گئی ہیں، وہ انگوٹھی والی کہ مجھے 3 کیرٹ نہیں، تھوڑا بڑا ڈائمنڈ چاہیے، بڑا ڈائمنڈ چاہیے، پانا نا مطلب نظر آئے گا بڑا ڈائمنڈ۔ ہر جگہ سے فرح خان کے نام پر جائیدادیں نکل رہی ہیں۔ عمران خان کرپشن کا جواب دو، الزام تراشی نہ کرو۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ابھی 50 کے قریب فرح گوگی اور گوگے برآمد ہوں گے۔ کہتے ہیں کیا وزیر اعظم ہاؤس کی فیملی میں فرح خان کا اندراج نہیں تھا؟ فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ نے کہا عمران خان پہلے کہتے تھے اتنے دن میں یہ کر دو ورنہ آ رہا ہوں، جلاؤ گھیراؤ کر دوں گا، اب کہہ رہے تھے دوبارہ اقتدار میں نہ لائے تو رونا شروع کر دوں گا۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی مقررہ وقت پر اور طریقہ کار کے مطابق ہوگی۔ وہ فرح گوگی 240 کنال جگہ بنی گالا میں، وہ اس کے نام ہے۔ کیا یہ فرح گوگی جو ہے اس کا وہاں پہ اندراج نہیں تھا کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس کی فرد ہے؟ تم روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے جو ہے وہ چور ڈاکو اور گالیاں نکالتے ہو اپنے سیاسی مخالفین کو۔ کہتے تھے کہ میں اگر یہ نہیں کرو گے تو میں یہ کر دوں، فلاں دن تک ایسے کر دو ورنہ میں آ رہا ہوں۔ رات یہ کہہ رہے تھے کہ جناب مجھے دوبارہ اقتدار میں لے آؤ، اگر آپ نے مجھے اقتدار میں دوبارہ نہ لایا تو میں رونا شروع کر دوں۔
सब्सिडी जीरो करने के वायदे पे और लेवी जो है उसको लगाने के वायदे के ऊपर दस्तखत जो है वो किसके? अगर उसके ऊपर शौकत तरीन के दस्तखत है तो फिर तुम अपनी सजा का तयन करो। जो रात का इनका एहतजाज था, केपीके के सारे लोग हैं, वहां से पूरी गवर्नमेंट, पूरी सरकार, मैंने उसे दो टोक अंदाज में 10 दिन पहले ये कहा था कि 50 अरब रुपया तुमने हुकूमत का सरकारी खजाने का पैसा वो तुमने डुबोया। इमरान खान के इर्द गिर्द कानून का दायरा तंग हो रहा है। चेयरमैन पीटीआई पर जब भी हाथ डाला जाएगा मजबूत हाथ डाला जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब, कहा इमरान खान का मिशन इदारों को कमज़ोर करना और इंतशार फैलाना है। इदारों के खिलाफ होने वाली तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। तो भी हुक्मरान हुकूमती अदारों का इस्तेमाल करके अपनी मुखालफत को कुचले, उससे ज्यादा बुज़दिल जो है इंसान कोई नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये शख्स जो है कानून का दायरा जो है इसके इर्द गिर्द तंग हो रहा है। ऐसी इंक्वायरियां इस वक्त जारी हैं, इसको जब हाथ डाला जाएगा, मजबूत हाथ डाला जाएगा। ये 5-5 मिनट का वक्त मांगता है कि खुदा का वास्ता है, तरले करता है, बाहर बड़का मारदा है, अंदर जाके तरले करता है, हाथ जोड़ देगा। अरकान कौमी असम्बली और उनकी बीवियों के पास कितना सोना है, किसके पास सबसे ज़्यादा है और किसके पास सबसे कम है, और कितने अरकान के पास सोना है ही नहीं, ये सब तफसीलात बता रहे हैं नियो न्यूज़ के नुमाइंदे साकिब सईद अपनी रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए असासों के मुताबिक सबसे ज्यादा सोना रखने वाले अरकाने कौमी असम्बली में आमिर अली खान मगसी, सरदार मोहम्मद बख्श खान मेहर, रियाज महमूद मजारी, चौधरी खालिद जावेद, एहसानुल्लाह टिवाना और अरबाब आमिर अयूब शामिल हैं। सरदार मोहम्मद बख्श खान मेहर 900 तोले, रियाज महमूद मजारी 500 तोले, चौधरी खालिद जावेद और अरबाब आमिर अयूब 500, एहसानुल्लाह टिवाना 400 तोले, जबकि आमिर अली मगसी 1 करोड़ मालियत सोने के मालिक हैं। मीर मुनव्वर अली तालपुर की बीवी फरियाल तालपुर के पास 3.5 किलो, अली अमीन गंडापुर की बीवी के पास 320 तोले, मोहम्मद यूसुफ तालपुर और सनाउल्लाह मस्ती खेल की बीवियों के पास 300 तोले, जबकि शहबाज शरीफ की बीवियों के पास 23 लाख का सोना है। मेंबर कौमी असम्बली इबादुल्लाह ने 37, जवाद हुसैन ने 39, मलक सुहेल खान ने 35, जबकि असद उमर ने 26 लाख मालियत का सोना जाहिर किया है। मुफ्ती अब्दुल शकूर की बीवी के पास सिर्फ 1 तोला सोना है। बिलावल भुट्टो, शेख रशीद, आमिर कियानी, फर्रुख हबीब और रियाज हुसैन पीरजादा के पास सोना है ही नहीं। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 20 हो गई। 13 अफराद जख्मी हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। बिजली की बढ़ती लोड शेडिंग पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्शन बिजली बहरान में कमी के लिए बंद पावर प्लांट्स को फौरी तौर पर बहाल करने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत दी है कि उन्हें बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से रिपोर्ट फौरी तौर पर पेश की जाए, जिसमें लोड शेडिंग की वजूहात को भी वाज़ेह किया जाए। लाहौर में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत लोड शेडिंग पर काबू पाने से मुतालिक अहम इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने लोड शेडिंग पर काबू पाने की हिदायत दी। उन्होंने मजीद कहा कि सूबों को पीने के पानी और ज़रूरी सहूलियात की फराहमी से मुतालिक मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए और इस सिलसिले में इरसा सूबों के साथ बाहमी मुशावरत और आज़ादी के साथ फैसला करे। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का जिन काबू से बाहर हो गया। बिजली का शॉर्टफॉल 7,787 मेगावाट तक जा पहुंचा। शहरों में 12 जबकि देही इलाकों में 16 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल बन गई। लोड शेडिंग के बायस शहरी परेशान, मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। आवाम की दुहाइयां बेसूद, एहतजाज भी काम न आया। गर्मी की शिद्दत में कमी के बावजूद बिजली का शॉर्टफॉल बेकाबू। लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी।
शहरों में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश पर शहरी चीख उठे। कहते हैं दिन हो या रात बिजली की आनियां जानियां लगी रहती हैं। तो 12 घंटे भी हो रही है, 14 घंटे भी हो रही है, ये जाती तो आती नहीं। 8-10 घंटे बंद हो रही है, बिजली के रेट और बढ़ाई जान रहे हैं। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,213 मेगावाट जबकि तलब 29,000 मेगावाट है। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में ज्यादा लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि साजिशी बयानियां नहीं, अब आवाम की खिदमत चलेगी। तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम फिर से शुरू हो रही है। आम आदमी की हालत ज़ार बदलने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। मुश्किलात से नहीं घबराते, मसाइल पर काबू पाकर ही दम लेंगे। हमजा शहबाज ने कहा कि अल्लाह ताला ने मखलूक की खिदमत का मौका दिया, वक्त ज़ाया किए बगैर सरगर्म अमल हैं। काबीना नहीं थी, फिर भी फौरी तौर पर 200 अरब सब्सिडी देकर आटा सस्ता किया। तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात दस्तयाब हैं। कैंसर मरीजों को अद्वियात की मुफ्त फराहमी के लिए फौरी इक़दाम किए। महंगाई पर काबू पाने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया गया। सेफ सिटी कैमरों की बहाली से अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं वज़ीर आला के इंतखाब में गैर जानिबदार और शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। हमजा शहबाज ने भी सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई है कि वो ज़िमनी इलेक्शन का अमल शफाफ अंदाज में मुकम्मल कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल करते हुए इस पर नेक नियति से अमल दरामद कराना सबकी जिम्मेदारी है। असम्बली के अंदर बड़ा अच्छा और दोस्ताना माहौल होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल करते हुए अमल दरामद कराना जो है ये सब की हमारी जिम्मेदारी है, दोनों साइडों की, पीटीआई की और कोलिशन पार्टनर पाकिस्तान मुस्लिम लीग और दूसरी तरफ नून लीग की भी वैसी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। और मैं ये समझता हूँ कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऐन रूह के मुताबिक असम्बली इजलास सुप्रीम कोर्ट के तमाम अहकामात जो हुए हैं उसके ऐन मुताबिक होगा और इंशाअल्लाह और हम इंश्योर करेंगे कि असम्बली के अंदर बिल्कुल एक बड़ा अच्छा दोस्ताना माहौल में इलेक्शन हो। सब उधर कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और पानी की अदम फराहमी पर शहरी सरापा एहतजाज है। नाज़िमाबाद और इतराफ़ के मकीनों का सखीसन पंपिंग स्टेशन पर एहतजाजी मुजाहरा, पानी दो के नारे भी लगाए गए। मुजाहिरीन ने सड़क को बंद कर दिया। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे कामरान सुहेल हमारे साथ मौजूद है। कामरान सुहेल बताएगा क्या मुतालबात है इन मुजाहिरीन के? और देखिए कराची में बिजली की गैर अनानिया बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ जो है वो आवाम सड़कों पर सरापा एहतजाज है। सखीसन हाइडेंट के बाद क्योंकि इन इलाकों के अंदर पानी की किल्लत हो गई है जिस पर जो है वो शहरी बिफर गए और जो है वाटर हाइडेंट के सामने जो है वो पंपिंग स्टेशन पर एहतजाज किया जहां पर शहरियों की जानिब से तोड़ फोड़ भी की गई। इस एहतजाज के बाद जो है वो पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुंची तो जो हुजूम जो था उसको काबू में आया, उसके बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। हुकूमत ने ईद उल अज़हा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने ईद उल अज़हा के मौके पर 5 तातीलात की मंजूरी दे दी। ईद की तातीलात 8 से 12 जुलाई तक होंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। काबीना डिवीज़न ने ईद कुर्बान के लिए सिर्फ 3 छुट्टियाँ दिए जाने की समरी अरसाल की थी। ईद कुर्बान से कबल आखिरी छुट्टी सुन्नत इब्राहिमी के तहत कुर्बानी के ख्वाहिशमंद शहरियों की बड़ी तादाद ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। नाज नखरे करते रंग बिरंगे जानवरों को देख देख कर शहरियों के दिल ललचाने लगे। ताहम जानवरों की कीमतें सुनकर खरीदारों के होश उड़ गए। मंडियों की क्या सूरत हाल है? कराची से जाहिद गफ्फार, इस्लामाबाद से साकिब सईद, कोयटा से मोहम्मद खान काकड़ और मुल्तान से माजिद कलासरा हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे कराची का। जाहिद बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं अभी आप कराची में? आज बिल्कुल इस वक्त मौजूद है सोराब कोट की मवेशी मंडी में और आज छुट्टी का दिन है, इतवार का दिन, और हमने देखा कि आज बहुत ही बड़ी तादाद के अंदर ख़रीदार आए हुए हैं। लेकिन उससे ज़्यादा जो हैरानकुन बात यह है कि जानवरों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ख़रीदार अपनी मनपसंद के जानवर भी ख़रीद के जा रहे हैं। हमने देखा सौदे भी हुए, लेकिन इसके बावजूद भी जानवर जो हैं वो उनकी तादाद में कमी नहीं हो रही है। बहुत ही बड़ी तादाद के अंदर जानवर इस दफ़ा हैं और आपको दिख रहा होगा मेरे कप के अंदर
कुछ लोग जो अपने एक माइंड बना के आए थे कि 2 लाख का जानवर लेना है, तो उनको वो 3-3.5 लाख में जानवर मिल रहा है, लेकिन मिल ज़रूर रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें व्यापारियों की, तो व्यापारियों का ये कहना है कि जब वो जानवर इस मंडी में लेकर आते हैं तो उसकी कीमत जो है डबल इस वजह से हो जाती है कि यहाँ पर जो सहूलियात हैं, जैसे पानी का ड्रम है वो 500 से 1000 रुपये का मिल रहा है, और जो जगह जिस जगह के ऊपर उन्होंने जानवर खड़े किए हैं उसकी भी जो उसका रेंट है वो भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो मजबूर हैं कि अब जानवर महंगा बेचने पे, और क्योंकि जो जानवर वो लेकर आते हैं परेशान नजर आ रहे हैं। ठीक है जाहिद, हमारे साथ ही रहेगा। इस्लामाबाद का रुख करते हैं। साकिब, यहाँ पर मवेशी मंडी में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? इस वक्त हम रावलपिंडी की बाटा चौक मवेशी मंडी में मौजूद हैं। ताहम अब यहीं पे हम देख सकते हैं कि पूरा दिन गुजर चुका है, लेकिन ख़रीदारों की आमद जो है वो बहुत कम है। इस वक्त हमारे साथ 2 व्यापारी जो हैं यहीं पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हर चीज़ महंगी है, खाल चोखर हर चीज़ महंगी है। इस वजह से गेहूँ महंगे हैं जो बैलों को देते हैं, इस वजह से बहुत कम आ रहे हैं, महंगाई की वजह है सब। तो एक ही हफ्ता रह गया, इसका आप पे कितना बुरा असर पड़ा है महंगाई का? बहुत बड़ा असर पड़ा है जी, थोड़ा असर नहीं पड़ा है। 11 जानवर 12 बदे एक भी कह पिछू खर्चे होके आए, गड्डियां तो चंगे पहले कराए, सब नुकसान हो रहे हैं हमें। जी बिल्कुल, आपने सुना कि ये जो व्यापारी हैं इनका कहना है कि हम एक हफ्ता यहीं पे हो चुका है, ताहम इनके जानवर जो हैं अभी तक नहीं बिके, और इनका ये भी कहना है कि पिछली दफ़ा इनके जानवर जो थे यहीं पे बिके थे और इनको ज़्यादा मुनाफा हुआ था, ताहम इस दफ़ा महंगाई के बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनको शदीद मुश्किलात। ठीक है साकिब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कोयटा का रुख करेंगे, मोहम्मद खान काकड़ हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। मोहम्मद खान बताइएगा, भाव-ताव का सिलसिला जारी है? मैं मौजूद हूँ कोयटा के ग्वाल मंडी चौक पर। यहाँ पे ईद कुर्बा से कबल जो है मंडी लग चुकी है। यहाँ पे ख़रीदार का आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मंडियों का रुख कर रहे हैं। यहाँ पे जो ख़रीदारों से हमने बात की, इनका कहना है कि बकरियाँ जो है ईद कुर्बा के जो जानवर है इस साल बहुत ही ज़्यादा महंगे। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, ये बताए कि ईद कुर्बा करीब है, जानवरों की कीमत ही कैसे है इस बार? यार इस दफ़ा बहुत महंगा है, 40,000 रुपये ऐसे जोड़ियाँ हैं, 2,10,000 रुपये ना। इस दफ़ा इंशाल्लाह महंगा माल है, इसलिए अफगानिस्तान बॉर्डर बंद है, माल बहुत महंगा है। बिल्कुल हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनका कहना है कि इस साल जो है कुर्बानी के जो जानवर है उनकी कीमतों में दुगना इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो जानवर लाए गए वो यहाँ पे जो व्यापारी है वो 1 लाख या 50,000 से जो है कम बात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे शहरियों से मंडी से मायूस होकर घरों की तरफ लौटना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ इस साल जो जानवर लाए गए वो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। जी मुल्तान का रुख करते हैं, जहां माजिद किलास्ट्रा हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद, मुल्तान में मवेशी मंडियां, किसी को कोई मनपसंद जानवर मिला या यहाँ भी व्यापारी परेशान है? सहीवाल नस्ल के जानवरों की बात करें तो उनकी कीमतें जो है वो 3 लाख से जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। इसके साथ साथ 3 लाख से अबव भी जो है वो 5 लाख तक कीमतें जो है वो टच कर रही हैं, जिससे शहरियों को बड़ा जानवर जो है वो ख़रीदने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। शहरी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, कौन सा जानवर आपने ख़रीदा है, रेट्स आपको किस तरह मिल रहे हैं? क्या अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ये ख़रीदार हैं, मार्केट में आए हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। गर्मी की वजह से एक तो कोई सहूलियात नहीं है, कोई पंखे की, पानी की, पीने के पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, और रेट बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि जो मालिक हैं वो कहते हैं इस बीमारी की वजह से हमने वैक्सीनें ज़्यादा करवाई हैं और ख़र्चा ज़्यादा है, क्योंकि जो चारे का रेट कम था वो ज़्यादा है, तो इस वजह से अब मैंने ये जानवर पसंद किया है। इसकी डिमांड ये कर रहे हैं 5.5 लाख रुपये। अभी सौदा जो वो बन नहीं रहा, इस जो है वो जानवर की कीमत 5.5 लाख बताई जा रही है। व्यापारी ज़्यादा मौजूद है। सर क्या कहेंगे, 5.5 लाख में जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं, ख़रीदार भी काफ़ी परेशान है, क्या कहेंगे इतने रेट क्यों हाई हैं? गाहक जो है वो ऐसे माल पे हाथ रखता, माल 2 लाख का वो लगाता लाख है। हमारे पे लाख का भी माल है, 1.5 लाख का भी है, 2 लाख का भी है। जैसा जानवर वैसी कीमत। पानी की पिलाई नहीं मिलती, मजदूर काम करते हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा, पैसे भी पूरे नहीं होते, तो शौकिया पालते हैं। पैसे भी जो वो पूरे नहीं होते। व्यापारी हज़रात का भी कहना है कि अखराजात काफ़ी बढ़ चुके हैं, और दूसरी जानब जो ख़रीदार हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं कि कीमतें ज़्यादा होने के बाद जो वो कुर्बानी का जानवर ख़रीदने में उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान ने हमें अपडेट किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का।